Okay, is this slide visible to all? Yes, ma'am. Before starting, I would just like to ask if any student is there who understand only English or only Hindi student, only English or only Hindi. Is there anyone? Okay, so we'll go bilingual in nature. Okay, we'll try to incorporate both category of students so that everyone can understand the lecture. So, as you all know, your paper 2 of psychology, unit 4 is about biological basis of human behavior. Okay, so now before starting with this, I have a simple question from you. Just be proactive and interactive. Okay, so what do you do when your cell phone rings? Tell me fast, answer fast. The very moment your cell phone rings, what happens? Just We contemplate. we get alert and we receive the call. You get alert and you receive the call. Yes. Or anything else? What are the few initial changes within you the moment your cell phone rings? All neurotransmitters get active. Neurotransmitters हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, right? That is happening within your body. But what changes are happening at the subtle level, like at the grosser level, which you can witness? Ma'am, ma'am, we get Ma'am, we alert can. and we try to see who is calling, and Yes, we decide whether we want to pick up the call or not. And yes, yes. Ma'am, we हाँ जी, reflexively pick up the phone. We you pick up. reflexively pick up the phone. Yes, it's the initial reflex, right? Okay, so the thing is, whatever is happening in our surrounding, that triggers something within us, right? And due to that trigger, that uh, um, what happens? Certain thoughts arises, right? Like the moment our cell phone rings, we have number of thoughts running through our mind in a microsecond. शायद हमें रियलाइज भी नहीं होता है बट उस थोड़े से टाइम फ्रेम में देर आर नंबर ऑफ थॉट्स जैसे कि समवन सेड अभी कि वी इवन डिसाइड वेदर वी हैव टू अटेंड द कॉल और नॉट एट टाइम्स वी ट्राई टू कंटेम्पलेट इस वक्त कौन फोन कर रहा होगा कहीं वहां से तो कॉल नहीं आया है मतलब वी टेंड्स टू कंटेम्पलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स द मोमेंट वी हियर द सेल फोन ओके कभी कभी हाँ ये होता है इंस्टेंट रिफ्लेक्स होता है जस्ट we just go and pick up the phone but at have number of fluctuations in our mind so everything that we think that we feel or that we do okay at the action level at the feeling level and at the thinking level so they all has important basis in our biological processes and events which are happening within us okay and these activities are associated with the nervous system okay so each and every act of ours whether it is physical act mental act or emotional or feeling affect okay so all are associated with our nervous system with our biological basis so now
what is this actually? The nervous system. It is composed of number of nerves. The word nervous itself is derived from these nerves. Okay, so we are composed of these network of nerves and cells that carry messages to and from the different parts of the body. Okay, so throughout the body there are number of nerve cells. Now they are like messengers. जैसे पहले के टाइम में पोस्टमैन होते थे ना, मैसेजेस डिलीवर करने के लिए इधर से उधर, तो ये पोस्टमैन है कहाँ के? हमारी बॉडी के. तो वट एवर मैसेजेस आर देयर, ओके, ब्रेन से कोई मैसेज अगर हाथ तक जाना है आपके, दैट यू हैव टू राइट, दैट इज अ मैसेज. यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू वॉक. वो आपकी फिजिकल बॉडी से यहाँ आपके ब्रेन से आ रहा है, और वो कनेक्शन आपके हाथों तक कैसे पहुंच रहा है? थ्रू नर्व्स. ओके, तो दिस इज हाउ your body actually communicate within yourself. This is the mode of communication within you. So now neurons are the basic building block of nervous system. The whole nervous system, जो हम nerves की बात कर रहे हैं, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? Neurons. Okay, they are the specialized cells for communication and processing of information. Neuron क्या होता है? एक सेल ही होता है ना. हम I guess इतना तो हमें पता होगा, cell is the basic unit of life, है ना. हमारा सारा फंक्शनिंग का जो बेसिक यूनिट है वो एक सेल पे डिपेंड करता है. बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट इज सेल. तो न्यूरॉन इज आल्सो अ सेल. नर्वस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरॉन, एंड इट इज अ स्पेशल सेल जिसका फंक्शन की कम्युनिकेशन, एंड इट इवन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस भी करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन जस्ट एज आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ पोस्टमैन, जो पहले टाइम पे होता था वो आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान तक लेके जाता था. बट व्हाट हैपन इफ द अदर पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू रीड? उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो पोस्टमैन जाता भी था और चिट्ठी खोल के उनको पढ़ के सुनाता भी था. राइट, तो सिमिलरली हमारे न्यूरॉन्स का काम क्या है? वो कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रहे हैं. ओके, डिकोड भी कर रहे हैं, सो दैट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैन एक्चुअली रिसीव इट एंड अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ न्यूरोसाइकोलॉजी डील्स विद हाउ the rest of the nervous system influence a person's cognition and behavior. Again, neuro, there are two words, neuro and psychology. Okay, and it deals with how the brain, okay, this is the primary thing, how neuro is associated with your nervous system, your brain. Okay, your brain, your nervous system, how your neurosystem can influence your psychology. And psychology is what? It is about your cognition and it is about your behavior. Okay, so this is neuropsychology. Okay, then we'll move to what is the basic structure of neuron. This is the basic information, and it is important for you because at times questions are being asked from this simple concept problem in your exam. So as I have already told that, okay, neuron is a cell. So what is the largest organelle? आपने cell पढ़ा होगा. All of you must have studied about cell and its diagram, structure of cell in 9th class, 10th class. We all have studied, right? Yes, ma'am. Okay, so according to that, what is the you understand cell organelles? Cell you understand, structure you remember, then you understand cell organelles. A cell has lot of cell organelles within. Remember? सेल के अपने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं अपने, जिनको सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं. उनके Yes, ma'am, various like functions होते हैं. mitochondria, Yes. Golgi body.
यस, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. Hmm. ओके, एंड जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील, जहां हमारे डीएनए आरएनए भी होता है. Nucleus. Yes, it is the nucleus part, na? That contains all the genetic information within us, right? So a neuron cell also has a similar kind of composition. Okay, it also has that nucleus. It also has lot of cell organelles which support its function. उसके काम को सपोर्ट करते हैं कि क्या क्या काम कैसे कैसे करना है. ठीक है, सेल अकेला नहीं कर सकता है. सेल के अपने ऑर्गन्स भी हैं, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही सेल के भी अपने ऑर्गन्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं. सो दे डू लॉट ऑफ फंक्शन. एनर्जी प्रोवाइड करना है, कहाँ कौन सा प्रोटीन बनेगा, उसकी स्किन कैसे डेवलप होगी, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड देयर. ओके, सो इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर. इट इज अ न्यूक्लियस हेयर and there are certain cell organelles for various functions, and this part is referred as, this whole area is referred as cell body, where these cell organelles are present and perform their functions. So this is cell body. Okay, now you are seeing these antenna like structures. Okay, now what can be these एंटीनास? एंटीनास का फंक्शन क्या होता है इन जनरल? जो वर्ड, द वर्ड एंटीना, क्या काम होता है उनका? सिग्नल्स को रिसीव करना. वेरी गुड, सिग्नल्स को रिसीव करना. तो सिमिलरली न्यूक्लियस, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के पास भी एंटीनास होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं. हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे जाते हैं, कम्युनिकेशन होता है, राइट? सो वो सिग्नल रिसीव कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? तो देयर आर नंबर, जिनसे नर्व्स बनते हैं. नाउ दे रिसीव एट वन एंड एंड देन दे ट्रांसमिट एट अनदर एंड. एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह देते हैं. ओके, तो दे रिसीव फ्रॉम डेंड्राइट्स. इनको हम बोलते हैं, जो हम एंटीना कह रहे थे जिनको हम न्यूरॉन के, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. दीज आर रेफर्ड एज डेंड्राइट्स. ओके, नाउ signal, when a signal is received at dendrites, it travels through the cell body of neuron. Okay, and then it has this tail like structure, this structure, and this is referred as axon. Please pardon if I pronounce something wrong. So this is axon. This is a tail like structure, and this travels through this axon and reach at these endings, which are referred as nerve endings. Nerve endings or nerve terminals also. Okay, so these are the end part, जहां से सिग्नल फर्दर आगे ट्रांसमिट होता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, तो वो एक साइड से तो रिसीव कर रहे हैं, डेंड्राइट से रिसीव कर रहे हैं, और नर्व एंडिंग से नेक्स्ट न्यूरॉन को सिग्नल वापस दे रहे हैं. ठीक है, नाउ these axon, the whole pathway has a protective layer. You can see these are covered with certain layers, and these are referred as myelin sheath. Myelin sheath. Okay, now this myelin has a special function here. Okay, so this myelin has a special function here, which actually speed the signal transmission process. ठीक है, ये एक तो स्पीडी ट्रांसमिशन में मदद करता है, स्पीडी कंडक्शन में मदद करता है. ये मदद कैसे करता है, दिस आई विल टेल यू इन लेटर स्लाइड्स. ओके, then again this is the similar thing which I have just explained you, that dendrite receives
Cell body contain nucleus and other cellular component. Axon carry information away from the cell body, and axon terminals or the nerve terminals transmit signal to other neurons. And contains more than 100 billion of neurons. ठीक है, इससे भी कहीं ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए. Okay, so we were talking about the myelin sheath. Now, one thing we need to understand, the nature of signal. The nature of signal which is being transmitted throughout the neuron is electrical in nature. जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ना न्यूरॉन के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक, उसका जो नेचर है इट इज इलेक्ट्रिक इन नेचर, एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो रेफर्ड it as an electric impulse. इसको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी कहते हैं. ओके, द नेचर इज इलेक्ट्रिक इन नेचर. इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है. Protects the axon from any leakage of ions. Leakage of electric ion उससे बचाता है myelin sheath. It prevent leakage throughout this. ठीक है, अब जब लीकेज नहीं होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, तो जो कंडक्शन है, जो पाथवे है, जो सिग्नल कंडक्शन हो रहा है, इट हैपेंस वेरी फास्ट. स्पीडी सिग्नल कंडक्शन happens within a neuron due to the presence of this myelin sheath. ठीक है, it prevents any leakage of electric ions. It is composed of fatty material, lipids, fats हम पढ़ते हैं ना. So that kind of composition is there, and due to that kind of composition, it provides insulation. Insulation, you understand, na? Yes, ma'am. Right? Which actually prevent any leakage. Right? Physics में we have understood, I guess, this word insulation. घर पे होता है ना that we have to wear rubber sleepers while switching on any light or something, especially if we are in bathroom where some wet area is there, some wet area is there, right? So why? Because rubber is an insulator. वो electric current को आप तक आने नहीं देगा, right? Plastic is an insulator. Okay. Then we have this nodes of Ranvier. Here you can see the gap areas in the myelin sheath. They are referred as nodes of Ranvier. These are the periodic gaps, and why are they present? They recharge the signal as they travel along the axon. So what happens as the signal is just traveling throughout the axon? So these gap areas actually recharge the signal by adding some more ions into it. Okay. By adding or exchanging some sort of ions, it actually recharges the signal. It keep recharging the signal. We'll understand later on in detail how the signal is actually transmitting. Okay, in detail we'll understand today. So these are so this is the whole structure that we have just understood. Cell membrane. So just like any other cell, even a neuron has a cell membrane which is double layered. Okay, cell membrane and dendrites and cell body, and this is the axon part. This is myelin sheath covering. This is nodes of Ranvier, and synapse will understand this. These are the axon terminals or the nerve terminals. Now this is oligodendrocyte. So oligodendrocyte is a supporting cell which provide nutrition, support, and any other requirement of neuron is fulfilled by this. Even this is responsible for the preparation of this myelin sheath. Okay, तो myelin sheath का preparation भी ये oligodendrocytes करते हैं. These are called glial cells. Glial cells. So the word glia is referring to glue in Greek, that is to stick around.
Okay, आप देख रहे हैं पिक्चर में, this oligodendrocyte is stick around the neuron. Okay, sticking around the neuron. That is why it is also referred as glial cells. Okay, now one thing you need to remember is that it is non-neuronal in nature. ग्लायल सेल्स को हम नर्वस सिस्टम के साथ, न्यूरॉन के साथ पढ़ते हैं, बट यू हैव टू बी अलर्ट एनफ इन योर एग्जाम if they are asking about them, because they are non-neuronal in nature. इसका क्या मतलब हुआ? They cannot communicate any information. न्यूरॉन हम सिर्फ उसी को बोलते हैं न्यूरॉन सेल जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करता है from one part of body to another. But glial cell का जो function है, it is not about communication at all. वो सिर्फ न्यूरॉन सेल को सपोर्ट करता है, वो एक सपोर्टिंग सेल है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. It helps neuron to stay in place. It helps in production of myelin sheath. It also helps to form blood-brain barrier. Okay, which is a layer which protects our brain from any pathogens or from any dangerous chemicals. Okay, and it also remove pathogens and dead neurons from your system. तो जो neurons खराब हो जाते हैं, dead हो जाते हैं, उनको भी यही glial cells remove करते हैं वहां से. Okay, so these are the function of glial cells. Any doubt till here? No, ma'am. Okay. Now we'll try to understand the concept of synapse. This is neuron 1, okay, and this is another neuron, that is neuron 2, let's say. Okay, now this neuron has to transmit a signal to this neuron. यहाँ से यहाँ पे signal जाना है. Now how will that take place? So as far as we have understood this structure of neurons, the nerve endings of a particular neuron, like it ends here. Okay, at this point it ends here. Now at this particular point another neuron starts. Okay, another neurons having dendrites. It is there. This is another neuron, right? Now there is a certain gap region between the end terminals of neuron 1 and between the dendrites of another neuron. ये receiver है ना, और ये transmitter है जो signal आगे देगा. End point है जहां से signal आगे जाएगा, और ये receiving end है, starting point जहां से signal receive होगा. That is neuron, another neuron which will receive the information. And this gap region between this gap region is referred as synaptic cleft, or simply you can call it as a synapse, where both neurons are there. One is giving the signal, another is receiving the signal. So this happens at this synapse. Okay, synaptic region. Okay, so you can see in this picture also, this is the end terminal of neuron 1. This is the dendrite of another neuron. We call it as a presynaptic neuron, and we called it as a postsynaptic neuron. Okay, this gap area is referred as synaptic cleft. What will happen? Signals. Now, another important thing to note here is that within the neuron, the signal was electrical in nature. Okay, within the neuron, nature क्या था signal का? Electric. Now, the moment the signal enters the synaptic region, it is converted into chemical. Okay, एक बार फिर से, जब तक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिक रहता है. द मूवमेंट जब उसको सिनेप्स में जाना होता है सिग्नल को, तब वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वी कॉल इट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर देन. ओके, वो ही केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. सो एट दिस एंड टर्मिनल it converts into chemical, it stored it in these synaptic vesicles, its synaptic vesicle fuses with the membrane, and
chemicals or the neurotransmitter are released in the synaptic cleft, and there are receptors in the postsynaptic neuron, the dendritic receptors. They receive the neurotransmitter, and further the signals are converted back into electrical signal by these receptors. उन्होंने neurotransmitter को लिया, and then again the information is converted back into electrical form. Okay, so this is how it happened. Again, I'm just revising it again for you. This is neuron 1, that is presynaptic. This is neuron 2, that is postsynaptic. This is the N-terminal region. This is the dendritic region. Okay. This is the synaptic cleft region. Okay. Then we have synaptic vesicle formation happening at the end of the nerve endings of presynaptic neuron. And it converts electric signal converted into what? Chemical signal. Okay. Now we have voltage gated calcium channels present at these nerve endings. Okay. So these calcium gated channels, in response to calcium, they just open and close. Okay. They give information to the neuron whether it is time to open or not. Okay. Whenever something is happening within our body, कोई सिग्नल आता है, उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में कोई दूसरा सिग्नल होता है, और उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में कोई तीसरा सिग्नल होता है. ओके, इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन. तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास, उस इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में आपके वहां पे जो कैल्शियम का जो कंसेंट्रेशन है वो चेंज होता है बॉडी के अंदर. ठीक है. एंड विद इन दैट, बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन या क्लोज होंगे उस कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट से. इट इज लाइक अ पास. हमें किसी पार्टी में जाना है और इनविटेशन कार्ड लेके जाना है, तो वो होगा तो ही हमें एंट्री मिलेगी या एग्जिट कुछ इस. तो वहां पे कैल्शियम से ही वो गेट जो चैनल है वो एक्टिवेट होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन से, बट वो ऑटोमेटिक है. ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू एनी सिग्नल इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिक विद इन अस. ओके. एंड ड्यू टू दैट neurotransmitters get released here in the synaptic cleft. Okay. And then they are received by the dendritic receptors of another neuron, and then again the signal converts back to electric one. वापस से इलेक्ट्रिक में चला जाता है because it is entering another neuron, right? And जो न्यूरॉन यूज में नहीं आते हैं, unused not neurons, neurotransmitters. तो जो न्यूरोट्रांसमीटर अनयूज रह जाते हैं, दे गेट ट्रांसमिटेड बैक, वापस भी चले जाते हैं वो इन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. इफ मतलब दे डोंट गेट वेस्ट. इज इट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the very important part, how the nerve impulse is conducted within the axon or within a single neuron. अभी हमने क्या समझा, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. ठीक है. फ्रॉम pre-synaptic neuron to post-synaptic neuron. We understood that part. Now we'll try to understand how nerve impulse is transmitted within a single neuron. Dendrite से लेके nerve ending तक का सफर अभी हमें पढ़ना है within a single neuron. Okay. So it has various phases, like 5 main phases it has, and we'll understand each of this one by one. Starting with the resting phase. Now, first we need to understand the nature of a neuron membrane, especially at the resting phase. Okay, जब कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस वक्त जो नेचुरल स्वभाव है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन का वो क्या होता है. ओके, नेचुरल नेचर ऑफ अ न्यूरॉन मेम्ब्रेन. तो in natural phase, you can see this is the resting phase. A neuron membrane has certain sodium channels for transporting of sodium ions and potassium channels for transporting of potassium ions. Okay. In this resting phase, the inside of a membrane, inside,
इनसाइड मीन्स जैसे ये न्यूरॉन का सेल बॉडी था ना, तो ये जो अंदर है, अंदर, दैट इज इनसाइड. अगर ये जो आउटर है ये बाहर हो जाएगा. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. सो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव. It is negative, okay, and outside the ion is positive. Outside is positive, inside is negative. ये हमें ध्यान रखना है. Inside is negative at resting phase. Now what does this negative imply? Okay, it is minus 70 MV. This is the voltage they are talking about. This is the voltage, and voltage कैसे generate होता है? Because of the presence of ions. जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी हम वोल्टेज की बात करते थे, वोल्ट की बात करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे. थोड़ा सा अगर हम 10th क्लास की फिजिक्स में जाएं, देयर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्ट में मेजर करते थे, जो कि आयंस की, इलेक्ट्रिक आयंस की वजह से डेवलप होता था. कुछ कुछ याद आ रहा है? समथिंग? Yes, ma'am. राइट. तो ये सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है. ओके, सो द मेम्ब्रेन इटसेल्फ हैज नेगेटिव इनसाइड, एंड उसका जो वैल्यू रहता है दैट इज -70. ठीक है, यहाँ पे 70 का, यहाँ पे आपका वोल्टेज का रहता है, अंदर से नेगेटिव रहता है. एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑल चैनल्स आर क्लोज्ड. सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल्स, ऑल आर क्लोज्ड. ओके, एंड दीज, ये जो वैल्यू -70 जनरेट हुआ है, ठीक है, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ आयंस, द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस. किस तरफ कौन से आयंस ज्यादा है रिलेटिवली, आउटर मेम्ब्रेन में या इनर मेम्ब्रेन में? नेचर ऑफ आयंस कौन से ज्यादा है, मतलब यानी कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ. तो बाहर अगर ज्यादा पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा हो जाएंगे तो अंदर रिलेटिवली नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रहेगा, वोल्टेज जनरेट होगा, एक डिफरेंस क्रिएट रहेगा मेम्ब्रेन में. ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रेस्टिंग फेज. नाउ व्हाट हैपेंस इन द वेरी नेक्स्ट फेज when there is a signal? Resting में there was no signal, but when any external signal enters, sodium channel opens. The very first thing, जैसे ही बाहर से कोई सिग्नल आया है, what will happen? Sodium channel will sense that signal and it will open. Sodium channel open हो गया. Now obviously when sodium channel is open, that means sodium ions will come inside. This will happen when sodium channel is open. That means sodium channel can come inside. Sorry, sodium ions can come inside. Now what will weaken the potential? Weaken the potential as in, जैसे पहले अगर -70 था अंदर, ठीक है, देयर वाज अ डिफरेंस ना, अंदर -70 हम मेंशन कर रहे थे, तो अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो लोअर की तरफ, उसका वैल्यू हमारा कम होने लगेगा. तो इट विल लोअर द वैल्यू. तो -70 से यहाँ पे इट में गो हमारा, सॉरी, -60, देन ग्रेजुअली -50, इस तरह से. तो जो आपका पोटेंशियल है वो अब कम हो रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है, सिमिलरली जो बाहर की लेयर और अंदर की लेयर में जो आयन का डिफरेंस है वो कम होने लगेगा, वो डिफरेंस. ये समझ पा रहे हो आप आयन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट? मैडम आई एम नॉट गेटिंग. ओके, सीरियसली बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. ओके, देखो इसको हम एक अगेन कुछ जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा. देखो हम बात कर रहे थे आयंस के फॉर्म में. अगर इसको हम बहुत ही सिंपल उसमें ले आते हैं, इन जनरल, हाँ,
suppose I have 5 rupees, ठीक है, and you have 10 rupees. Okay, so the difference of amount we have is 5 abhi, है ना, 5 rupee difference, Right, right. right? Now what happens if someone gives me 3 rupees? Okay, so I'll have 8 rupees and you still have 10 rupees. Now the difference will be, First you were having 5 rupees and I was having 10 rupees. 10. Okay, Difference was 5 rupees. right. Then someone gave you 3 rupees. Then it came like the calculation was 8 rupees and I was having 10 rupees. Right? Yes, right. तो difference कितना रह गया? अब difference आएगा 2 rupees. 2 rupees, right? तो पहले आप और मेरे में डिफरेंस गैप कितना आ रहा था? 5 कॉइन्स का, 5 रुपी कॉइन Right. का गैप आ रहा था, राइट? हाँ. आप में पोटेंशियल था मुझको देने का उस वक्त, हाँ. मतलब यू हैड मोर मनी देन मी ना, Right. हाँ. डिफरेंस वाज मोर, पोटेंशियल डिफरेंस वाज मोर, आपका हाँ. पोटेंशियल, आपकी क्षमता बढ़ गई ना. इसको कंसेप्चुअली हम वैसे ही समझ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ पाओ आप, ठीक है? आपका अंदर वो पावर बढ़ गई कि या यू हैव मोर देन 5 रुपीज मोर देन मी, तो यू हैव मोर पोटेंशियल. हाँ. हाँ. है ना, ज्यादा पोटेंशियल है हाँ. आपके अंदर, वो पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है हमारे बीच में, एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प मी. बट Right. अगर मैं स्ट्रेंथन, मुझे कोई और पैसे दे गया और मेरे पास तो अब 8 रुपीज हो गए, हाँ. तो हमारे बीच का ये जो आपका ये जो पोटेंशियल था मुझे सर्व करने का, ये कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ. कम हो गया ना पोटेंशियल. हाँ. हाँ. तो हम क्या कह रहे हैं, पहले यहाँ -70 MV था पोटेंशियल, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, फेज 1 अंदर ना पॉजिटिव सोडियम आयंस आ गए, अंदर पॉजिटिव आयंस आ गए सोडियम के, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा अंदर, है ना. तो वो जो वैल्यू थी -70, नंबर लाइन याद है ना मैथ्स में, हाँ. हाँ. -1 -2, है ना. इसमें अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं, हाँ. प्लस कर रहे हैं, तो हम इधर बढ़ेंगे ना नंबर लाइन में वापस, हाँ. नेगेटिव में ही जाएंगे. हाँ. नेगेटिव में इधर ही, मतलब -2 से -1 आएंगे ना. अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, +1 कर दूं -2 में, हाँ. राइट? हाँ. है ना, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे -70 था रेस्टिंग हाँ. में, राइट? यहाँ हाँ. पे आ गए बहुत सारे बहुत सारे अभी तो नहीं आए, बट द इनिशियल फेज ग्रेडेड में कुछ थोड़े से सोडियम के आयंस आ गए विच आर पॉजिटिव इन नेचर. तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ -70 से -60 पे हो गया. ओके. ओके. हाँ. क्लियर? पॉजिटिव सोडियम मिल रहा है. हाँ, तो वो मतलब माइनस का जो है वो डिडक्ट हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है वहां से, क्योंकि पॉजिटिव की पॉजिटिव तरफ आ जा रहा रहा है है, उसके पास. बिकॉज पॉजिटिव इज गेटिंग एडेड. यस, पॉजिटिव इज गेटिंग एडेड, इसलिए हाँ. तो हम क्या पॉजिटिव कह ऐड रहे हैं, होने से पोटेंशियल इज नेगेटिव वीकनिंग. यूनिट्स कम होते जा रहे हैं. राइट, यूनिट्स कम होते जा रहे हैं और पोटेंशियल जो था वो भी वीक हो रहा है, पोटेंशियल इज गेटिंग वीकन. हाँ. डिफरेंस जो था बाहर की लेयर और अंदर की लेयर में जो डिफरेंस था वो भी तो कम हो रहा है ना फिर. हाँ. हाँ. हो रहा है ना कम डिफरेंस. हाँ. हाँ. राइट. राइट. अभी क्लियर है? यस. 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 Okay. Okay. So this, we are talking about the graded potentials when sodium channel is open, sodium ion is entering and potential is weakening. Potential difference is weakening. ठीक है? But this signal travel very short distance. Okay? बहुत ही कम डिस्टेंस तक ये सिग्नल ट्रेवल कर पाता है यहाँ पे, बिकॉज सिग्नल का जो अपना इंटेंसिटी है वो कम होता है इनिशियल स्टार्टिंग के फेज में यहाँ पे. तो सोडियम चैनल लंबे टाइम तक ओपन नहीं रहता है यहाँ पे. अभी ग्रेडेड पोटेंशियल वाले फेज में इट इज ओपनिंग, सोडियम इज एंटरिंग, मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा हुआ चेंज, ठीक है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वहां पे चेंज होने लगा.
then what will happen in the action phase? This is another another level, third phase. Now what is happening? This is the actual depolarization phase. Now what happens? सोडियम चैनल रिमेन ओपन यहाँ पे, ठीक है, सोडियम चैनल ओपन रहते हैं और देर इज मोर एंड मोर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, मोर एंड मोर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, यानी कि अंदर और ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है. ये -70 था, मैंने बोला ये -60 तक गया, अब अंदर और भी सोडियम आ रहा है, और भी सोडियम आ रहा है. मुझे 8 रुपए मिले हो गए थे ना, मेरे को 2 रुपए और दे दिए, बराबर. मैं तो बराबर की तरफ भी जा रही हूँ. खैर ऑल्दो ये बराबर वाला नहीं है, बट इट इज एनहेंसिंग. सोचो 1 रुपए और मिल गया, मेरे पास 9 रुपीज हो गए, आपके पास 10 रुपीज हो गए, तो इट इज एनहेंसिंग. ठीक है, तो हम और ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट, जिसकी वैल्यू रहती है -55 MV. -55 तक जब हम पहुंच जाते हैं वोल्टेज में, ठीक है, तो हमारे पास नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये हम -70 पे, ठीक है, ग्रेडेड में हम -60 तक मान लो आ गए. लेट्स एज्यूम देयर इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट एट -55 MV. जब हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -55 रीच करता है, इसको हम थ्रेशोल्ड इसलिए बोलते हैं, इस वक्त एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज more incoming sodium ion, more incoming of sodium ion, more influx of sodium ion. जैसे ही आप -55 पे रीच करते हो, और ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन आने लगता है अंदर. ठीक है, तो मोर ऑफ सोडियम इज एंटरिंग, राइट. अब अंदर पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, यानी कि अगेन मुझे किसी ने 10 रुपीज और दे दिए. अब मेरे पास 20 हो गए, आपके पास तो 10 ही थे. हाँ, तो पॉजिटिव कौन हो गया अब? यू है ना. एंड रिलेटिवली यू आर नेगेटिव, रिलेटिवली यू आर नेगेटिव एंड आई एम पॉजिटिव है, राइट. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ पे बहुत सारा सोडियम आ गया अंदर. अब बिकॉज ऑफ दैट सेल पोटेंशियल रीचेस +40 MV. हम -70 से कहाँ तक पहुंच गए? पॉजिटिव ले लेके +40 तक पहुंच गए. यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है दैट इज +40 MV. हाँ, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है. इसी को हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन फेज. व्हाई डीपोलराइजेशन? कैन यू गेस व्हाई वी आर कॉलिंग इट डीपोलराइजेशन? पहले क्या था? -70. अभी क्या है? +40. हाँ. कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया ना, चेंज हो गया, उसको डीपोलराइजेशन बोला. ओके, मतलब जब कंप्लीट हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन. एंड व्हाई वी आर कॉलिंग दैट? क्योंकि रेस्टिंग फेज में क्या था? अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था. हाँ, शुरू में मेरे पास 5 रुपए थे, आपके पास 10 रुपए थे, है ना. मैं आपसे नेगेटिव में चल रही थी. बाद में क्या हुआ? मेरे पास 20 हो गए, आपके पास 10 रहे, यानी कि आप मुझसे नेगेटिव में चले गए. तो एकदम पलट हो गया ना, पोल चेंज हो गए. राइट. तो अंदर क्या हो गया? अंदर रेस्टिंग फेज में नेगेटिव था ना वोल्टेज, अंदर पॉजिटिव हो गया, और बाहर अब नेगेटिव हो जाएगा. हाँ. तो मैम यहाँ पे ये एक्शन पोटेंशियल के नीचे वाला जो है वो रीपोलराइजेशन लिखा है. वो तो अभी हम बताएंगे ना, अभी हम इसी फेज में. ओके. वी आर स्टडीइंग दिस फेज ओनली. मतलब अभी ये एक्शन पोटेंशियल का ही चल रहा है, जिसमें डीपोलराइजेशन वर्ड है. ओके, गॉट. हाँ, ठीक है. ओके, और तो वो ये है डीपोलराइजेशन. हम इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज -70 से इट रीच टू +40, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के तरफ आ गया है बैलेंस उसका. हाँ, ठीक है. ओके. द मेन थिंग इज, हमें नंबर से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट द मेन थिंग इज आयन का नेचर चेंज हो गया है. अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया. अंदर पॉजिटिव हो गया ना, पहले नेगेटिव था ना. हाँ, तो अंदर जाके पॉजिटिव हो गया, राइट.
हाँ, अंदर का वोल्टेज जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो गया, अब देयर आर मोर ऑफ पॉजिटिव आयंस देयर, मतलब हाँ कहने का मतलब ठीक ये है, है ना? ठीक है, ओके, इसी हाँ को हम बोलते हैं, इसी फेज को, कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। ठीक है मैम। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो वहां एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। दिस मीन्स सिग्नल इज ट्रेवलिंग, दिस इज द इलेक्ट्रिक सिग्नल वी टॉक अबाउट ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसी को तो बोलते हैं। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैज बीन जनरेटेड इन अ न्यूरॉन। यस मैम। ठीक है, एंड we also call it all or none response. Now this is again important for you. All or none response means या तो एक्शन पोटेंशियल पूरी तरीके से जनरेट होता है या बिल्कुल नहीं होता है। देयर इज नो वीक एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट। देयर इज नो वीक होता है ना वीक, कि ओके, हल्का सा हाँ जनरेट हो गया, ऐसा इसमें ना फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। ओके ओके। इधर इट इज देयर और नॉट। हम्म। ठीक है, हम्म पार्शियल प्रेजेंस नहीं होती एक्शन पोटेंशियल की। हम्म ठीक है, so this is action potential phase, which is phase 3. Now the next phase is phase 4. What happens in this phase? Now sodium channel close. ठीक है, अभी सोडियम चैनल बहुत ओपन था काफी देर के लिए, तो अंदर बहुत सारा सोडियम आया, अंदर पॉजिटिव हो गया सब कुछ। अब सोडियम चैनल बंद हो जाता है, इट क्लोजेस। नाउ व्हेन सोडियम चैनल क्लोजेस, there is opening of potassium ion channels. अब अंदर से पोटेशियम, ये you can see it, potassium channel opens up. Now why is it opening? हमारी बॉडी का एक नॉर्मल, एक होम्योस्टैसिस होता है, यानी कि सब कुछ वापस नॉर्मल होना, न्यूट्रल होना। कुछ भी इधर उधर होता है ना रिवर्स, वो वापस न्यूट्रल पे आता है विद इन आवर बॉडी। बॉडी हैज टेंडेंसी टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। जो बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशंस है हमारी बॉडी की, वो वापस वो मेंटेन करता है। जैसे पेंडुलम नहीं होता, इधर जाता है लेकिन वापस बीच में आता है, इधर जाता है लेकिन वापस बीच में आता है। तो हमारा बॉडी के अंदर जो जो बायोकेमिस्ट्री चल रही है, इट इज वेरी इंटेलिजेंट इन नेचर। तो कुछ भी इधर उधर होता है ना, इट ट्राइज टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, तो ये जो आपके पोटेंशियल में अभी चेंजेस आए, तो दैट इज नेचर ऑफ योर न्यूरॉन। इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स रेस्टिंग फेज, जो हमारा पहला फेज था। वो नेचुरली कोशिश करेगी कि मैं वापस रेस्ट में कैसे आऊं। वी ऑल्सो रीस्टार्ट ना, ऑलवेज we get up in the morning and restart the whole day. There are number of fluctuation in our day. We again go to sleep and restart our day, like a cycle. Similarly, neuron has its own cycle. It also want to restart everything. वापस resting phase में जाना है उसको। ठीक है, तो वो करने के लिए वो पोटेशियम चैनल ओपन अप करती है। इट ओपन्स पोटेशियम चैनल। नाउ देयर इज रिलीज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर से बाहर की तरफ क्या जाएंगे? पोटेशियम आयंस। पहले क्या हुआ था? पहले सोडियम आयन बाहर से अंदर आए थे, जिसकी वजह से हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? नाउ इट इज रिवर्सिंग। यहाँ पे अंदर से पोटेशियम हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब न्यूरॉन के अंदर। एंड अगेन व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज अंदर पॉजिटिव ज्यादा इकट्ठा हो गया है ना, अंदर +40 हो गया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉजिटिव आयंस। नाउ अगर पॉजिटिव आयंस को हम वापस कर दें, मेरे पास 20 रुपए आ गए थे ना, बहुत सारे पैसे हो गए थे। अब मैं अगर मैं उसमें से 5 रुपीज आप, तो हमारे पास दोनों के पास 15 हो जाएंगे ना। हाँ है ना? हाँ तो बैलेंस कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। हाँ है ना? तो क्या हो रहा है, अब अंदर से पोटेशियम आयन उस बैलेंस, अब देखो, मेरे को आपको 5 रुपीज देने हैं, बट मेरे पास ना मेरे पास क्या बोलते हैं, आई हैव 1 रुपीज का कॉइन। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द होल 5 रुपीज कॉइन जो मुझे मिला था, मैं आपको 1 रुपीज करके दे रही हूँ। डज इट मैटर मैं आपको 5 का सिक्का दूं या 1 रुपी कॉइन दूं?
है ना, मुझे तो हम्म, देने से मतलब है ना, 5 रुपए हाँ देने हैं ना। तो हाँ सिमिलरली हमें तो पॉजिटिव आयंस को अभी बाहर भेजना है, तो हम्म सोडियम तो अंदर आ गया था, बट अब पोटेशियम बाहर जा रहा है उसके बदले में, टू हम्म क्रिएट दैट बैलेंस, हम्म टू रिस्टोर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि चेंज हो हम्म गया था, उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, हम्म क्लियर है ये? हम्म That is why this phase is referred as repolarization. We are trying to repolarize it वापस से पुराने फेज में. ओके ओके हम्म Done. Now, in the next phase, what is happening? Potassium ion channel remain open. जो अभी हमने ये जो पोटेशियम चैनल्स पढ़ा था कि ये ओपन हो जाता है और बाहर पोटेशियम जाता है, नाउ इट रिमेन्ड ओपन, खुला ही रह जाता है गेट, और बहुत सारा पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है. मतलब व्हाट हैपेंड, मैंने आपको अभी क्या बोला था, मैं आपको 5 रुपीज देती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या करा, आपको 5 रुपीज की जगह आई हैव टोटल आई हैड 20 ना, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 5 रुपीज आई स्टार्टेड गिविंग यू 5, फिर से मैंने आपको 5 दिए, तो मेरे पास 10 रह गए, आपके पास 20 हो गए, ठीक है, तो और फिर मैंने क्या किया, और भी 5 आपको दे दिए, तो मेरे पास अगेन 5 रह गए और आपके पास 25 हो गए. आर यू गेटिंग? आई एम गिविंग इन एक्सेस. फिर मेरे पास जो बचे हुए 5 रुपए थे, मैं उसमें से भी 2 रुपए आपको दे दिया, मेरे पास 3 ही रुपए बचे और आपके पास शायद 28 रुपीज हो गए, समथिंग लाइक दैट. पोटेशियम चैनल रिमेन्ड ओपन, रिलीज ऑफ पोटेशियम आयन इन एक्सेस, बहुत सारा पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है. हाँ ओके, बहुत ज्यादा एक्सेस में चला गया, ठीक है. तो वो जो पुराना मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था ना, -70, मैंने कहा ना, पहला क्या था, फर्स्ट स्टेज हमारी, शुरू में मेरे पास 5 रुपए थे पर आपके पास 10 रुपए थे, राइट लेकिन मीन्स ये जो पूरी सिचुएशन हुई, इस चक्कर में क्या हुआ, जो मेरे पास 5 रुपए थे, मैंने उसमें से भी आपको दे दिए, ठीक है. तो क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले हम -70 MV इतना वोल्ट में थे हम, ठीक है, बट gradually we shifted to -60, then we shifted to we crossed threshold, that is -55 MV, then we moved to +40 MV, then we started repolarization. तो repolarization phase में gradually ये चीजें वापस से कम होनी शुरू हुई, ठीक है, हम वापस माइनस में आना शुरू करेंगे धीरे से repolarization में. और बट इन दिस स्टेज जब हम कह रहे हैं पोटेशियम का आयन चैनल खुला ही रह गया एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव आयंस रिलीज हो गए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, वो -70 को भी क्रॉस कर जाता है, ऐसा कुछ समथिंग, और ओके 9 और ओके कम हो गया और पीछे चला ओके गया. ओके दैट इज व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन. ओके, ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब माइनस के साइड में ही और ज्यादा बढ़ गया वो, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन, एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन, जितना चाहिए था रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया, ठीक है. नाउ दिस इज an interesting phase. We also call it as refractory phase. Refractory phase. Now what does this mean? In this particular phase, the neuron cannot receive any new signal and cannot generate any other action potential. एक बारी में एक ही सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है. इस फेज में जब इस फेज में हम होते हैं, तब द न्यूरॉन कैन नॉट जनरेट एनी अदर एक्शन पोटेंशियल, कोई और सिग्नल नहीं लेगा, वो पहले इसी को प्रोसेस पूरा करेगा, ठीक है. नाउ दिस रिफ्रैक्टरी फेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One is absolute
another is relative. Now, absolute refractory phases, again, as I said, there will be no generation of any other action potential. कोई और सिग्नल होगा, प्रोसेस नहीं होगा. That is absolute period. But the moment this absolute period is about to over, ठीक है, ये पहला पीरियड है. रिफ्रैक्टरी फेज के 2 पार्ट्स हैं, 1 and 2. When this period 1 is about to over, there is a relative phase. Now in this relative phase, अगर हम बहुत strong कोई सिग्नल देते हैं, कोई स्टिमुलस with very strong potential or energy, ठीक है, तो वो there are chances that that signal can be received. बिकॉज ये एंडिंग फेज है ना, हमारा न्यूरॉन वापस रेस्टिंग फेज में पहुंचने ही वाला है, ठीक है. तो हाइपर पोलराइजेशन के वक्त रिफ्रैक्टरी फेज का पहला फेज है जिसमें कोई नया सिग्नल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एब्सोल्यूट फेज खत्म होता है और रिलेटिव फेज शुरू होता है, तो अगर सिग्नल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब सपोज आपको कोई आवाज आ रही है बाहर से, आप जहां पढ़ रहे हैं उसके बाहर से कोई आवाज आ रही है, ठीक है, अगर वो बहुत धीरे धीरे आवाज है तो हो सकता है आपको ना इतने इफेक्ट हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर क्लास. लेकिन जैसे ही उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी उस सिग्नल की, उस आवाज की, है ना, देन यू हैव टू रिसीव इट, है ना. तो यू आर गोइंग टू रिसीव इट. तो सिमिलरली रिलेटिव फेज में अगर सिग्नल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो वो रिसीव करने लगता है अगले सिग्नल को, स्टार्ट कर देता है प्रोसेस, ठीक है. सो अगेन द वेरी लास्ट स्टेप इज पेंडिंग हियर, which happens with the help of sodium potassium pump. There is a presence of sodium potassium pump जो क्या करता है, वापस से सोडियम और पोटेशियम आयंस को एक्सचेंज करता है मेम्ब्रेन के आउट एंड इनसाइड, सो दैट हम वापस से रेस्टिंग फेज में पहुंच सके. सोडियम एंड पोटेशियम, तो अंदर जितना सोडियम आया होता है उसको वो बाहर करता है, बाहर जितना सोडियम पोटेशियम भेजा होता है उसको वापस अंदर करता है वो पंप, और वापस से जो न्यूरॉन होता है इट एंटर्स द रेस्टिंग फेज, which is this phase. This happens in hyperpolarization. This happens, yes, मतलब the very after hyperpolarization also, मतलब अच्छा, this is, है ना, hyperpolarization में तो क्या हो गया ना, ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन एक्सेस हो गया, -90-80 तक चलेगा. अब इससे इसमें जाने का प्रोसेस हम बता रहे हैं वापस, तो इधर उसके से बीच में लाइक हाइपर पोलराइजेशन और रेस्टिंग पोटेंशियल के बीच में सोडियम एंड पोटेशियम पंप अप होता है. पंप होता है सोडियम पोटेशियम का, जो वापस से हमें न्यूरॉन को रेस्टिंग फेज में ले जाता है. तो सोडियम पोटेशियम पंप रीस्टोर द पोटेंशियल, वापस से अंदर -70 MV आ जाता है नेगेटिव इनसाइड, और सारे चैनल्स यहाँ पे वापस से बंद हो जाते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसेस. हाँ, मींस वो हाइपर पोलराइजेशन में जो एक्सीड कर गया था -90 और समथिंग, तो अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल में उसका -70 आ ही जाता है. राइट. मेरे पास 3 रुपए बचे थे, आपने मुझे वापस दे दिए पैसे, आपने मुझे वापस कर दिए कि ये तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे दिए थे, और आपके पास भी जितने एक्सेस ऑफ मनी आया था वो भी आपने मतलब एलोकेट कर दिया इधर उधर. तो अगेन आई हैव 5 रुपीज, यू हैव 10 रुपीज. वो पुरानी मतलब वही है मैम कि रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन्स आने के बाद में -70 MV ही रहता है, वो -80 भी नहीं होगा, सॉरी -71 भी नहीं होगा और -69 भी नहीं होगा, वो एग्जैक्ट -70 ही रहेगा. राइट. ओके, गॉट. वापस आ गया न्यूट्रल फेज में अपने, ठीक है. ओके. सो देयर इज अ ग्राफ हियर to understand again the similar concept. This will help you to revise everything. So one more question. ये -70 and like -55 ये एकदम शॉर्ट फिगर है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आता है क्वेश्चन, आया है इनफैक्ट, स्पेशली इस वैल्यू पे नंबरिंग पे. यस. ओके. इस पे क्वेश्चन आया है
-55 वाले पे. So it is not absolute value कि -55 ही होता है, but you can consider it as a range of ये -60 से -50 के बीच रहता है threshold. मीन्स अप्रोक्सीमेट भी डालते हैं वो लोग? Approximate डालते हैं, क्वेश्चन में डालते हैं. ओके, तो बट ये 70 -70 वाले में भी अप्रोक्सीमेट डालते हैं कि सिर्फ -55 में डालते हैं? इसमें अभी तक क्वेश्चन इसमें से आया है, पूछा गया, इसलिए आई कैन सी अबाउट दिस, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है पेपर में एक बार. -50 इस पे, हाँ, थ्रेशोल्ड वैल्यू 70 पे अप्रोक्सीमेट नहीं डाला है अभी. हाँ. ओके बट ओके, वही है ना, गॉट वी हैव टू बी अवेयर इन केस दे गिव सम approximate values, then also we need to be aware of it ना. राइट, दैट्स व्हाई मैम. ओके, ठीक है. So this is the initial phase again, resting phase. The voltage is -70 here. Then there is a presence of stimulus. बाहर से कोई सिग्नल आता है, स्टिमुलस आता है. Okay. Now because of the signal, initially sodium channels open, right? Sodium channels open up. Some sodium enters and membrane potential changes a bit. -70 से हो सकता है थोड़ा सा यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन the signal was not strong enough. Signal was not strong enough. So this lead to failed initiations. जो शुरू हुआ था वो खत्म हो गया, सिग्नल आगे नहीं बढ़ा वो, ठीक है. बट अभी क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, अच्छा खासा, जिसकी अच्छी खासी इंटेंसिटी है, वो वाला सिग्नल आता है. अगेन टेकिंग दैट एग्जांपल, अगर आपको कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल. बट इफ यू आर मिसिंग इट, आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो किसी चीज को, तो वो फेल्ड इनिशिएशन था, ठीक है. नाउ व्हेन अ सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग एनफ एंड द पोटेंशियल रीचेस approximately -55, then this is the threshold value. At this point, there will be more and more influx of sodium ions. More and more influx of sodium ions, which will lead to what? Depolarization. कितना वैल्यू चला जाएगा? +40 तक, ठीक है. अंदर -70 से कहां पहुंच गए हम? +40 तक. That is depolarization, and we call it that action potential has generated. एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, तभी तो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है. अगर वही पुराने स्टेज में रहते तो देयर इज नथिंग, कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हुआ. लेकिन जब पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हुआ तो अब कुछ एक्शन होगा, वापस से रिपोलराइजेशन के लिए काम होगा, ठीक है. इसलिए वी रेफर्ड इट एज एक्शन पोटेंशियल हैज जनरेटेड. नाउ व्हाट विल हैपन, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, सोडियम के चैनल्स तो बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं. Then potassium channels will open up, and potassium will go from inside to outside of the membrane to balance it. We call it as a repolarization phase. But potassium channels remain open. ये खुले ही रह जाते हैं काफी देर तक. Okay. Now they remained open. Then what happened? Lot of positive ion go outside. So this lead to stage of hyperpolarization. आप देख रहे हो ये कहां तक पहुंच गया है, somewhere here, which can be -80 or 90 something like this, है ना. And we call this phase as hyperpolarization. बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया, जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा, राइट. और हाइपरपोलराइजेशन से यहां से रेस्टिंग फेज में जाने के लिए ये जो पूरा टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज रेफर्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड. जिस स्टेज में, जिस टाइम पीरियड में वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आने की कोशिश कर रहा है, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड. इसमें आई टोल्ड यू देयर आर 2 phases. One is absolute, another is relative. In the absolute phase, the neuron will not receive any other signal or any other action potential will not be generated. But if after ending of absolute period, if there is very, very strong signal, in that case, there are chances that a new action potential may generate in the
relative phase, relative refractory period. Okay, there are chances हो सकता है. Then gradually in the presence of sodium, potassium pump, this what will happen? It will restore the potential back. ये वापस से हम उसको न्यूरॉन को रेस्टिंग फेज पे ले ही आता है जनरल. ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस. You can take 1 or 2 minutes to see this and reconceptualize this and then ask me in case you have any doubts. Just take your time and again revise it. Ma'am, Hmm. ma'am, if the neuron is in the absolute period, then do we register some stimulus or no stimulus at all? We actually don't. So Whether stimulus is there, but we are not being able to register it. Or registering means we are like the neuron is acting in some manner, na? But the neuron it don't respond to it. In And presence of any signal, neuron is not responding to any signal at that point. So, ma'am, does it happen with like few neurons or like the whole system doesn't register? Like are they- The whole system. Absolute phase is absolute for every neuron cell. Okay. Madam, in repolarization, Hmm. when potassium is releasing, at Hmm. that time only potassium is releasing. Yes, only potassium is released. Sodium is not being released. No, No, sodium is staying there. Only Yes. the Sodium, thing which yeah. is Sodium gates are closed, na? When sodium potassium gates are channel is closed. open, sodium gates are closed. So sodium cannot be released at that point. Okay, got it. One question has also been asked in your exam. बहुत ही simple था, but they just try to ask कि कौन सा आयन अंदर रहता है हमेशा, कौन सा आयन बाहर रहता है in general. Is it okay with everyone? Any doubts to anyone? Ma'am, in this action potential is for membranes potential they are saying. ये जो पूरा process है membrane के potential के बारे में बता रहा है. Right. So exactly at that point action potential के वो chemical वाला ठीक है, समझ गया concept, पूरा circle जो cycle है वो समझ गया. But at the time of action potential, what exactly happens? ये जो पॉइंट हम केमिकल वाला नहीं है, ये सारा इलेक्ट्रिक वाला चल रहा है. ओके, द इलेक्ट्रिक वाला जो हाँ ठीक क्योंकि है है ना, न्यूरॉन के हाँ. अंदर तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहा है, तभी तो वी आर डीलिंग विद इन वोल्टेज. ओके ओके यस यस यूज कर रहे हैं यस हम unit. वोल्टेज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक. हाँ ठीक है. Yes. So So all this action is happening due to electric thing. Voltage में क्या potential difference is the actual voltage ना. तो इसलिए action potential, the word itself means action potential. जो potential difference generate होता है उसकी वजह से कुछ action हो रहा है ना, and that means the electric signal is floating. This is the electric signal being generated, which you can see here. जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसे हुआ. This is the actual electric signal we are talking about. Okay. Okay, madam. Okay. Okay, again, this is the overall process, starting से end तक, ठीक है?
So there is synthesis of neurotransmitter and formation of synaptical vesicles. कहाँ पर? ये प्रीसिनेप्टिक था हमारा, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में, उसके नर्व टर्मिनल्स में एंड में क्या हो रहा है? देयर आर दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सिंथेसाइज होते हैं और सिनेप्टिक वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं. Now they travel down the axon here at the end and they just release themselves. जो vesicles होते हैं, they merge with this layer, the outermost layer, and they release the neurotransmitter in the synaptic cleft. Now what happens, like they are saying, action potential travels down the axon. So they are talking about here, this process, whole process. ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर की बात हो रही है, द होल प्रोसीजर विच वी हैव जस्ट स्टडीड ना. तो उस न्यूरॉन ने, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन ने कोई सिग्नल रिसीव किया होगा डेंड्राइट के थ्रू, ठीक है. नाउ उसके थ्रू आउट द एक्सॉन देयर इज this action potential generation. Now at the end of the nerve transmitter, nerve ending में क्या होगा? वो electric signal neurotransmitter generate करेगा, synaptic vesicles में pack करेगा and it will deliver it to the synaptic cleft, right? And ये जो action potential जो generate हुआ था, इसी की वजह से हमने starting में पढ़ा था about calcium gated channels, ion channels, ठीक है. तो because of this action potential only, those calcium gated ion channels will open up to release the neurotransmitter in this synaptic cleft. Okay, so those calcium gated ion channel will sense these action potential, and finally neurotransmitters get transmitted in this synaptic cleft region. Now again what will happen? They will get attached to the receptor or dendritic region, जो कि dendritic receptors है किसके? postsynaptic neuron के, right? And then what will happen? The signal will get converted again into electrical one, ठीक है. जो न्यूरोट्रांसमीटर आए, इंफॉर्मेशन दी और इंफॉर्मेशन डीकोड, वापस से कोडिंग हो गई इलेक्ट्रिक में, केमिकल की. न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं अपना काम करने के बाद, एंड दे ट्रांसमिटेड, दे रिसाइकल्ड बैक इनटू दिस previous neuron. So this is the whole process. Is it clear to everyone? Any doubts to anyone? So this was all about today's class, the whole topic of neurotransmitting transmission, synaptic transmission. Any query to anyone? Okay. मैम, हाँ जी. you were asking in between कि कौन सा वाला अंदर रहता है ज्यादातर और कौन सा वाला बाहर रहता है. So is it the sodium that is inside all the time, most of the time? Sorry, is it? Is it sodium that remains inside ज्यादातर? और नहीं, the question they used to ask ना, वो उसका resting phase वाला ही पूछते हैं, the natural state of a neuron. अच्छा, तो sodium remains inside ना? हाँ, तो वो they used to ask about the natural state. इसमें हम जब बात करते हैं तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, and I guess there are few more acids are also there. Certain acids are also there, ठीक है. तो and plus H plus ions, they ions are also there. तो at that time सोडियम जो है वो आउटसाइड ही रहेगा. देखो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, अच्छा, सोडियम के जो आयंस चैनल थे, गोइंग बैक टू द पिक्चर, आप देखेंगे ना, आप पिक्चर में नोट कीजिए, जो सोडियम है वो बाहर से अंदर आ रहा है, दैट मीन्स वो बाहर रहता है और बाहर से अंदर आता है. और जो पोटेशियम है वो अंदर से बाहर जा रहा है. हाँ, यानी कि नेचुरल स्टेट में पोटेशियम अंदर रहता है. हाँ, ठीक है, ओके. Okay. Any query to anyone else? No, ma'am. Clear from my side. Okay, so let's have a quick evaluation.
I'm launching 2 questions. See your polls and answer quickly. Check the poll section and answer. And you'll get 1 minute to answer them. Answer quickly. Okay. So what is the answer? In the very first question, what channel plays a role in the release of neurotransmitters into the synaptic cleft? So I guess all of you have answered it correctly. Voltage gated calcium channels. We have just studied that. Now arrange the following in correct sequence. Okay, so most of you have voted for the last option, that is BDAC. Anyone would like to explain me your answer? Why so? Anyone? Just explain me once. Ujjwala? मैम ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइजेस जो है इज द हाइपर वाला ना? नहीं, हाइपर वॉज अलग. हाइपर के लिए प्रॉपर हाइपर वर्ड यूज होता है वहां पे. हाइपर पोलराइजेशन. इट मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है. द वेरी इनिशियल फेज. यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी. Only one student gave this answer, but I guess this is what happened in your exam. कभी कभी मतलब हमें कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाता है, but then in that case also the language confuses us. In the language question is being asked, that confuses us. Okay, so the very first is B, sodium channel opens, and the very moment sodium channel opens, there is change in membrane potential. And the moment membrane potential में change आता है, वहां पे action potential is generated. That is D. Right?
एंड एक्शन पोटेंशियल के बाद डीपोलराइजेशन आता है, फिर repolarization आता, मतलब action potential, sorry, itself is depolarization. After at action potential, repolarization happen, and then hyperpolarization and refractory phase is part of hyperpolarization. That is the last phase. Okay, is it fine to everyone? So membrane potential rises, वो what was that? मैम एक बार वो आप चार्ट ओपन करेंगे, वो वाला ऊपर रेड वाला मैम, 18th वन. यस, तो membrane potential rises at the grand potential वाले एरिया में. हाँ, मतलब right, मतलब even after that, before action potential generation. ओके, This is मींस वो graded 55 potential. -55 थ्रेशोल्ड पे आने पे. हाँ. ओके ओके मैडम. कुछ पोटेंशियल में तो वो एक्सचेंज शुरू हुआ है ना आयंस का. ग्रैंड पोटेंशियल में सोडियम चैनल्स ओपन रहते हैं. ग्रेडेड पोटेंशियल, सॉरी है ना. ग्रेडेड ग्रेडेड मतलब पोटेंशियल में, हाँ ग्रेडेड पोटेंशियल में सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं. एट द सेम टाइम जैसे ही वो ओपन होते हैं, हाँ, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइजेस. हाँ, चेंज, राइट. मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइजेस एट दैट मोमेंट, थोड़ा सा चेंज आता है वहां पे, थोड़ा सा. एंड देन जब वो थ्रेशोल्ड को रीच करता है तब तो वो फिर बिल्कुल ही चेंज हो जाता तो है. वो जो थ्रेशोल्ड को रीच करने वाला जो फेज है उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज बोलते हैं. राइट, नाउ यू गेट इट करेक्टली. गॉट मैडम, क्लियर. Okay, then. So this Thank you, was ma'am. our bios class. The classes for biological basis of behavior will start in March only. In the mid of March, I guess. In the mid of March. It will be a week course. Okay, so those who are interested can enroll for that course. And okay then. Ma'am, Hanji. can you suggest any book that that you can recommend, any book for this biopsychology? Okay, actually there are a number of books, but even basic books can be considered for your net level. जो नेट साइकोलॉजी में जितना पूछते हैं ना, तो इवन जैसे सिजरेली है हमारा, जो बेसिक, हम बायो की बेसिक साइकोलॉजी की जो बुक्स की बात करते हैं, तो इवन सिजरेली गिव्स लॉट ऑफ गुड नॉलेज ऑन इट. Okay, so and otherwise if you want, I'll share, I have certain PDFs of books, so I'll share those books. Matlab if you want any bio specific book, so I'll share that. But for your psychology, net psychology exam, any simple good book is sufficient for you, which gives conceptual clarity over your syllabus oriented topic. Okay. Yeah. Okay then. Hopefully see you guys again. Take care. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम. मैम ये एक्शन पोटेंशियल पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, so I was really very interested in understanding. Yes, they used to ask, and at times it is difficult to comprehend this concept. समझ आने के बाद भी समझ नहीं आता है. Yes, actually. वो जैसे वो एक पार्ट आ गया ना, वो मेम्ब्रेन रेज वाला, तो वो it was थोड़ा बहुत डिफरेंस था, but yes, cleared ma'am. Yes. Thank you, ma'am. So you need to keep learning and evaluating yourself. Again, evaluation part is important. Otherwise, preparation is half. Okay, ma'am. Okay, then take care all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.